Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. So, without delay, we'll start. The three shlokas are Canto 3, 5th chapter, 21, 22, and 23. So, in the 23rd shloka, there is a mention of the Chatur Shloki Srimad Bhagavatam shlokas. So, I'll just, instead of reading, I'll read the Chatur Shloki Bhagavatam shlokas. So, everybody gets the punya and the falashruti of chanting the entire shloka. Entire Srimad Bhagavatam. Okay? So, Aham evasame Taruni, you've given me Bhagavad Gita by mistake. Aham evasame Anybody knows? Nanyad Sat. Anyone knows Chatur Shloki? Srimad Bhagavatam? No, not by hearted. Srimad I think Bhagavatam Surat Chatur Madhav maybe. Shloki. Okay. I'll just read it. I missed out some two, three lines in between. I don't remember. Mani Prabhu had taught us very well. So I'll just read it out. Aham evasame nanyad yad sat asat param paschat aham yadetaccha yo avashishyeta sosmyaham. So these are the shlokas. These are 4 shlokas which Maitreya Muni is teaching Vidura here in this. Okay. So the next is Rit artham yat pratiyeta na pratiyeta chatmani tat vidyad atmano mayam yatha bhaso yatha tamaha. Then is Yatha mahanti bhutani bhuteshu uchavacheshvanu pravishtani apravishtani tatha teshu nateshvaham. Etavad eva jignasam tatva jignasunathmanah अन्वय व्यतिरेखाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा. Okay, so these are the Chatur Shloki. This is Canto 2. If anybody wants to make a note, it is 29, 30, no, sorry. Canto 2, Chapter 9. Shloka number is 30, 32, 32, 33, 34, 35, 33. Sorry. Canto 2, Chapter 9, Shloka number 33. यहाँ से स्टार्ट होता है चतुर श्लोकी श्रीमद् भागवतम. मैं बाद में ग्रुप में डाल दूंगी अगर आपको चाहिए तो. So it will be very nice if you just recite this every day. You get the falashruti of chanting the entire Srimad Bhagavatam. I'm sorry for this confusion. ठीक है, तो अभी हम अपने श्रीमद् भागवतम क्लास रेगुलर में आते हैं. भवान भगवतो नित्यं समतः सानुगस्यः यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद भगवान व्रजान. ट्रांसलेशन बाय श्रीला प्रभुपाद. मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ यहाँ पर. Your good self is one of the eternal associates of the Supreme Personality of Godhead, for whose sake the Lord, while going back to his abode, left instructions with me. तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि विदुरा को कह रहे हैं कि यहाँ परपोर्ट में लिखा है कि यमराज, जैसे यमराज was one of the महाजन्स, है ना. तो जैसे कोई एक कंपनी होती है, तो एक कंपनी में जो सबसे हाई होता है वो सीईओ होता है. तो सीईओ के आसपास जो डायरेक्टर्स होते हैं, दे आर वेरी क्वालिफाइड, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, दे नो द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी, दे नो द इंटरनल, द वेरी कॉन्फिडेंशियल मैटर्स.
तो इसी तरह से भगवान ने भी अपने सृष्टि को चलाने के लिए ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे डिवोटीज रखे हैं अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, ताकि वो सृष्टि को चला सके। और उसमें से विदुर मैत्रेय मुनि यहाँ पर यमराज जी का उदाहरण दे रहे हैं कि यमराज जी हैं जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसका आगे का जीवन यमराज जी डिसाइड करते हैं कि अब ये क्या गति प्राप्त करेंगे, है ना। तो ये यमराज जी डिसाइड करते हैं। तो ही इज अ वेरी ग्रेट डिवोटी एंड ही इज नॉट बायस्ड, ही इज जस्ट, है ना। ही इज नॉट सेइंग, ही डजंट हैव एनी लाइकिंग फॉर एनीवन। जो जिसका कर्मा है वो वैसे वैसे उसको वो डेस्टिनेशन प्राप्त होती है। तो ऐसे ही भगवान ने चुनकर अब हर एक पोस्ट के लिए अपना एक भक्त रखा है, ताकि इस सृष्टि की रचना हो सके और सृष्टि का काम आराम से चल सके। तो इसी तरह से मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि विदुर जी कि आप भी इतने महान हैं। विदुर इज नोबडी एल्स बट यमराज ओनली, ठीक है। तो बिकॉज ही वाज कर्स्ड सो ही बिकेम विदुर, ओके। So, but he is so learned, विदुर जी is so learned, he is यमराज। तो इसीलिए भगवान मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जब भगवान वैकुंठ को जा रहे थे, उन्होंने मुझे और उद्धव को ये सारे इंफॉर्मेशन, श्रीमद् भागवतम की कथा और सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए, ताकि मैं ये आपको सुना सकूं, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, है ना। और फिर यहाँ पर लिखा है कि जनरली the eternal associates of the Lord in the spiritual sky, they don't come down to the material world. जो भगवान के दूसरे associates हैं, वो लोग इस धरती पर नहीं आते। जैसे आप देखो देवी देवता, वो अगर आते भी हैं तो उनके पांव कभी भी जमीन पर नहीं टच होते हैं। ये बात आप सबको पता है? You can give me a hands up if you know this. They don't touch the, very nice, thank you माताजी। तो they don't touch the earth, they don't touch the जमीन, है ना। तो इसी तरह से बट इफ द लॉर्ड डिजायर्स, है ना। जैसे अभी हमारी कौन सी फेस्टिवल आ रही है? गौर पूर्णिमा। तो गौर पूर्णिमा के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान ही है, वो अपने पार्षदों के साथ आए थे, है ना। व्हाट इज द श्लोका इन चैतन्य चरितामृत? एनीबडी नोज अबाउट दिस? कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम, anybody knows? संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। आई एम मिसिंग आउट वन वर्ड। किसी को आता है ये पूरा श्लोका? कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञहिर संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण, एक्चुअली कृष्ण का क्या मतलब है? कृष्ण मतलब ब्लैक, ठीक है। तो सही कृष्ण तो डार्क ही हैं। तो कृष्ण वर्णम, जो उनका वर्ण है, जो उनका रूप है, त्विषा कृष्ण मतलब, त्विषा मतलब गोल्डन। तो वो गोल्डन अवतार में कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम, वो अपने पार्षदों के संग आते हैं। और जो सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय, क्या करने के लिए? सबको हरिनाम देने के लिए, सबको हरिनाम बांटने के लिए। यजंती ही सुमेधसा, जो ये संकीर्तन यज्ञ को समझता है वो सुमेध है, मतलब इंटेलिजेंट है। वो ही इंटेलिजेंट है और वो ही इसको प्राप्त करेगा। सो बाय कृष्णा's mercy, I think we are little bit, I'm not being proud, but I think we all are little intelligent that we understand कि हमें भगवान की भक्ति करनी है और हमें अपना हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है। Is that so? Everybody feels that also? No? हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। ठीक है। So like this, sometimes Krishna, thank you माता जी, sometimes Krishna comes down with his parshad. इसी तरह से कई बारी कृष्णा खुद नहीं आते हैं, लेकिन अपने एक अनुयायी या रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, जिनको वो ये सब शक्तियां प्रदान करते हैं, और उसको बोला जाता है शक्ति आवेश अवतार।
So what is the meaning of Shakti Avesh Avatar? Can anyone explain to me? Anybody knows? Hare Krishna Mataji. Anji Prabhu. That means specially empowered, like Prithu Maharaj, Yes, Srila yes. Prabhupada. शिला प्रभुपाद, yes, the very very near, निकट, जो हमसे बहुत निकट है वो है शिला प्रभुपाद, है ना. So he has been given the power of attorney. जैसे हम दूर है और हमें कुछ प्रॉपर्टी साइन करनी है, बट जो असली ओनर मतलब कोई और है, तो हम उसे पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, that you do it on my behalf. Like this, Krishna is given Srila Prabhupada that go to the west, and जिन लोगों के पास कोई भी संस्कार नहीं थे कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है, भगवान के कीर्तन कैसे करना है, भोग कैसे लगाना है, उन सब के बीच में रहकर, उन सब लोगों के बीच में रहकर उन्होंने, श्रीला प्रभुपाद के पास इतनी शक्ति थी कि उन्होंने सबको सिखाया कि कैसे जप करना है, कैसे वी हैव टू बी क्लीन. जैसे हावर्ड को जो बन गए हयग्रीव दास, उनको अपने बालों से बहुत प्यार था, तो कैसे श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हें ये बाल अपने निकालने पड़ेंगे, क्योंकि वो हावर्ड के बाल हिप्पियों के जैसे लंबे लंबे थे ऐसे. तो श्रीला प्रभुपाद जी ने उन्हें सिखाया कि यू हैव टू गिव अवे योर दिस लॉन्ग हेयर फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा. सो टू डू फॉर हावर्ड वाज अ बिग थिंग, बट बिकॉज ऑफ द लव, हाउ श्रीला प्रभुपाद जी ने जैसे दूसरों के साथ इंटरैक्ट किया. To interact is very important, and the way we interact with people to teach them Krishna consciousness is also very important. है ना. अगर हम बहुत स्ट्रिक्टली किसी के आगे आके और उनको प्रीच करते हैं, they might not listen. But Srila Prabhupada made these Western devotees Brahmanical Dikshit. He made them so pure. And got them to get all the Brahmanical qualities, you know, how they should do deity worship, how they should be clean, how they should not, made them to follow all the 4 regulative principles which they were not following at all. So this can only be done, and he opened 1 temple, 2 temples, 3 temples. He opened so many temples like this. I think in my head, Srila Prabhupada had the best management, strategies in his head. कोई भी MBA class कुछ भी आपको नहीं सिखा सकती, क्योंकि Srila Prabhupada only on the basis of bhakti, on the basis of Srimad Bhagavatam, all the leadership qualities जो इसमें Srimad Bhagavatam में, all the management qualities जो Srimad Bhagavatam में है, सब Srimad Bhagavatam में है, Bhagavad Gita में है. He took all of that and he opened up so many temples for everyone to come and take darshan of the Lord. So that is Shakti Avesh Avatar. ठीक. फिर नेक्स्ट श्लोका में बोलते हैं, अथ ते भगवल लीला योग मार्योरु मिताह विश्वस्थिति उद्भावान्तार्थ वर्णा यामी अनुपूर्वशः. I shall therefore describe to you the pastimes by which the personality of Godhead, Bhagwan Shri Krishna, extends his transcendental potency for the creation, for the maintenance and dissolution of the cosmic world as they occur one after the other. है ना. तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि आगे विदुर जी को कह रहे हैं कि अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे भगवान स्वयं ही क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं और एनिलेट भी करते हैं इस पूरे सृष्टि को. वो खुद फॉर हिज ओन प्लेजर ही डज इट हिमसेल्फ, ही डज इट फॉर हिज ओन प्लेजर, ही डज इट बाय हिज ओन विल. देयर इज नो वन बियॉन्ड हिम, क्योंकि भगवान से पहले भी भगवान ही थे, इस सृष्टि से पहले भी भगवान थे इस सृष्टि. एंड कौन थे? नॉट द अदर अवतार्स, नॉट पुरुष अवतार्स, नॉट द शक्ति आवेश अवतार्स, नॉट द डिफरेंट अवतार्स. कृष्णा स्वयं पहले थे. ही इज द ग्रेटेस्ट, ही इज द अवतारी एंड अदर्स आर अवतार्स. अगर आपके पास पुराना कोई गॉड्स, डेमीगॉड्स, इनकारनेशंस एक वीडियो कैसेट होगा, और अभी CD में भी आ गया, या इट मे बी ऑन यूट्यूब, where there is the conversation between तमाल कृष्ण महाराज, और उसमें वो तमाल कृष्ण महाराज बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि कृष्णा इज अवतारी
and others are avatars of Krishna. ठीक है, उसमें फर्क है. ठीक. So we go to the next shloka. भगवान एक आसेदम अग्र आत्मान मन आत्मात् मनान विभुः आत्मेच्छानु गतौ आत्मा नानमति उपलक्षणः. The Supreme Personality of Godhead, the Master of all the living entities, existed prior to the creation as one without a second. It is by His will only that creation is made possible, and again everything merges in Him. This Supreme Self is symptomized by different names. ठीक है, यहाँ पे सेम चीज भगवान विदुर मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि भगवान अपनी ही इच्छा अनुसार इस सृष्टि को बनाते हैं. इस सृष्टि से पहले वो ही थे और इस सृष्टि के बाद भी वो ही रहेंगे. इस सृष्टि को मेंटेन भी वो करते हैं, क्रिएट भी वो करते हैं और एनिलेट भी वो स्वयं ही करते हैं. बिकॉज कृष्णा इज काल, कृष्णा इज टाइम, है ना. ही इज बाय हिज हम कह सकते हैं इनकंसीवेबल पोटेंसी, जिसको बोला जाता है अचिंत्य. What is inconceivable potency in Hindi? अचिंत्य शक्ति. अचिंत्य शक्ति. तो उनकी अचिंत्य शक्ति से कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं. एंड इवन आफ्टर डूइंग ऑल दिस, जैसे कि हर साल बारिश आती है, फिर दूसरी ऋतु आती है, फिर बारिश आती है, फिर दूसरी ऋतु आती है, ऐसे सर्कल चलता रहता है. इसी तरह से ये क्रिएशन, मेंटेनेंस, एनिहिलेशन का ये सर्कल चलता रहता है और भगवान इस सृष्टि को ऐसे ही चलाते रहते हैं. और हम हमारी क्या पोजीशन है सृष्टि में? वी आर सबऑर्डिनेट, हम लोग दास हैं. वी हैव टू लर्न टू बी द दास ऑफ द लॉर्ड. वी हैव टू बी सबऑर्डिनेट. और हमारे कर्मों अनुसार हमें हर सृष्टि में अपना अपना कार्य करना पड़ता है. जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन जब खत्म होता है तब एनिहिलेशन होती है. ठीक है, there is a big calculation here. It is written in Bhagavad Gita 9.7. Anybody wants to chant the shloka 9.7? Okay, I'll chant it. Sarva bhutani kaunteya prakritim yanti mamikam kalpakshaye punastani kalpadau visrajamyaham. So इस भगवद गीता में कह रहे हैं, ओ सन ऑफ कुंती, एट द एंड ऑफ द मिलेनियम all material manifestations enter into my nature, and at the beginning of another millennium by my potency I create them again. ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि at the end of the millennium all material manifestation enter, मतलब भगवान क्या करते हैं, सब वाइंड अप कर देते हैं वापस, चलो खत्म हो गया. जैसे कोई सर्कस है, हम सर्कस देखने आते हैं, तो जिन्होंने सर्कस ऑर्गेनाइज किया है, पहले वो आते हैं, बैम्बूज लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, सब लगा के अपना क्रिएशन करते हैं, फिर उसको मेंटेन करते हैं. कैसे मेंटेन करते हैं? सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं और एक है जो सबको ऑर्गेनाइज कर रहा है. फिर उसके बाद सर्कस ओवर, 5 days ओवर ऑफ द सर्कस, सब लोग बैम्बू उखाड़ के वाइंड अप करते हैं और सब अपने अपने जो ओनर है सब उसके अंडर अपने वापस काम करने लग जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही हम भी हमारे कर्म अनुसार हम जैसे जैसे एनिहिलेशन होती है और हम नया जीवन लेते हैं एज पर आवर कर्मा. ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल कि हम अपना जीवन, प्रेजेंट जीवन कैसे जी रहे हैं. इफ वी आर लिविंग as per Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and we are following the process of bhakti, because why bhakti? Because we can do, हम MBA कर ले, PhD कर ले, we can do the highest thing, and then what after that? Then what? Is there anything that else we can achieve? And how much we can achieve? Will we get the satisfaction? But if we read Srimad Bhagavatam and we read Bhagavad Gita, that is the real satisfaction you will get, that will allow us to go back home, back to Godhead. ठीक है, वो हमारी गति होनी चाहिए, ना कि हमारी गति हो कि we are just going up materially. That should be the thing. ठीक है, so Krishna is time, and because वो कृष्णा टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे
what anybody knows the story of Jaitrath? Anybody knows? In short, can someone tell me? Very So easy. which part you are saying, Mataji? Jaitrath? Full life or जयद्रथ की स्टोरी रिलेटेड टू टाइम, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, जो जयद्रथ को एक he was given that के after sunset he cannot be killed, something like this, correct? Correct. Okay. So I'll do that, Mataji. Yeah, please say, तो प्रभु जी. ओके, तो ऐसा था कि अर्जुन का जब बेटा अभिमन्यु मारा गया, तो जयद्रथ वाज द वन हु हैड होल्ड देम, क्योंकि उसको वर था, उसने तपस्या किया था कि मैं मार सकूं पांडवों को. तो ही हैड होल्ड देम फॉर वन डे, एंड फॉर दैट अर्जुन अब बहुत जो थे उनसे क्रोधित थे, बोले मैं इसका वध करूंगा, और वो शपथ लेते हैं कि मैं कल शाम तक इसका वध कर दूंगा, इसका पूरा. एंड फॉर उसके लिए क्या करते हैं कि वो जयद्रथ को छुपा देते हैं. बोला अगर इसको छुपा के रख दिया ये तो अर्जुन से लड़ नहीं पाएगा, और सामने गया तो मारा जाएगा. तो इसको हम लोग अगर बंद करके रखते हैं, लॉक हिम, तो ऑटोमेटिकली जो है अर्जुन अपना प्राण त्याग देगा. और इसके लिए फिर भगवान अब सोचते हैं ये तो बड़ा कठिन मामला है, तो क्या करते हैं, अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक देते हैं. और जब सूर्य ढक जाता है तो जयद्रथ बहुत खुश होता है, भाग के आता है, बोलता है अरे सूर्यास्त हो गया. जैसे ही वो बाहर आता है, अर्जुन जो है उसको और भगवान कृष्ण अपना डिस्क हटा लेते हैं और अर्जुन उसका वध कर देते हैं. हरे कृष्ण. करेक्ट, थैंक यू प्रभु. तो भगवान इसका क्या मतलब है कि भगवान अपने एनर्जी से वो सूर्य को भी ढक सकते हैं. आई रिमेम्बर एज अ चाइल्ड सीइंग द महाभारत, and that what was his name who did this, Nitish Bharadwaj, who was Krishna in that serial. So he with his hand only he just did like this और सूर्य ऐसे ढक गए. That scene is there in my head. तो ऐसे ही भगवान he doesn't have to do this also, because भगवान is अंगानी यस्य सकल इंद्रिया, वो कुछ भी अंग से कुछ भी कार्य कर सकते हैं. तो भगवान खाली देखते हैं और सूर्य भी अपना टाइमिंग बदल सकते हैं. दिस इज कॉल्ड अचिंत्य, द इनकंसीवेबल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड. इन वन ऑफ द क्लासेस ऑफ राधानाथ महाराज आई हर्ड, राधानाथ महाराज सेड कि भगवान टाइम को जैसे 1 मिनट का जो टाइम है उसमें 12 साल भी उसमें डाल सकते हैं, और भगवान टाइम से खेल सकते हैं. he can play with time, he can make the time go left to right, he can make the time go up and down, he can do anything with time. ठीक है, because he is the controller, main controller. and जो दूसरे उनके अंडर हैं, they are only doing the various activities like Surya is doing, Chandra is doing, Maya is doing. So they are all devotees of the Lord and they are doing their activities. है ना. जैसे we say that the Lord can do anything. जैसे चैतन्य महाप्रभु once was doing कीर्तन. ठीक है, तो ऐसे बोला जाता है कि जहाँ पर कीर्तन हो रहा हो, जहाँ पे भगवान का नाम जप हो रहा हो, वहां पे हरि कथा हो रही हो, वो जगह लोगों को वहां से विदाउट प्रसाद नहीं जाना चाहिए. अगर विदाउट प्रसाद चले गए तो दैट इज अ फेलियर. तो ऐसे ही एक जगह चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे और वहां पर प्रसाद फॉर सम रीजन नहीं था. तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, एक मैंगो का सीड लिया, वहां पर ही धरती में डाला, और उसी समय जब उन्होंने डाला तो वहां से एक पेड़, मैंगो का पेड़ निकल के आया. ठीक है, और वो मैंगो का पेड़ में से बहुत सारे मैंगोज, नाइस बेस्ट क्वालिटी मैंगोज, बिग, एक को सबको बांटा और सबका पेट भर गया. वेरी फ्रेश एंड जूसी एंड मैंगोज केप्ट कमिंग. जैसे कामधेनु गाय से सब कुछ आता रहता है, ऐसे ही मैंगोज केप्ट कमिंग फ्रॉम दैट ट्री. So this is the potency of the Lord. He can do anything. ठीक है, he can annihilate for his own pleasure, he can create for his own pleasure. ठीक है, he gives the he gets Brahma ji there, and then Brahma ji, and then after annihilating and after creating, he is doing everything. He is the boss. After that also he says what he says in Bhagavad Gita: if you give me water, if you give me leaf, if you give me food, if you give me if you give me leaf, patram, if you give me flower, phalam, if you give me fruit, I will accept it. He is only the owner of everything, but he is telling us, hey, please, if you give me this, if you give me this, if you give me this, I will accept it with love and devotion.
Then what he says, that he is a controller, but what he says, please abandon all varieties of religion and come to me, and I will take care of your sins, and I will take away all your sins. Please don't fear. He is only the controller, he is only the owner, and he is only saying that please do this for me. Then he is saying that it is like आपके पास 1000 रुपए हैं, ठीक है, आपने 1000 रुपए लेके आपने अपने अलग अलग चीजों में खर्चा किया और आपके पास कुछ एक अमाउंट बच गया. बट कृष्णा क्या है? कृष्ण पूर्ण है. इन any situation he is purna. Suppose he is 1000 and he has created, he has given in the creation so many species, he has given in the creation so many food items, so many animals, so many things, and again he is maintaining them. For maintaining also he is spending so much for maintenance, and then he is annihilating. Annihilation में करने के लिए भी खर्चा होता है. So when he is annihilating, for that also he is spending. But still, after creating, after maintaining, after annihilating, he is still that 1000 only. He has not decreased. Nothing has gone lost from him. ठीक है? He is Anadi Adir Govinda Sarva Karana Karanam. He was always there, he will always be there, and he is the cause of all the causes. Anybody wants to add any point to this? See, Krishna, he is so merciful. Like in Chaitanya, since we have Gaur Purnima coming, Chaitanya Mahaprabhu के घर में एक ब्राह्मण आए थे. तो उस जमाने में ब्राह्मण क्या करते थे? They used to come and cook by their own hands. They would not want others to cook for them. तो वो उन्होंने सची माता से जो ब्राह्मण आए थे सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए खाने के और खुद बनाया. और जब भोग बनाया और भोग लगाने जा रहे थे, घंटी बजाई और अपना चैंटिंग किया, पत्रम पुष्पम फलम. तो उसी समय आंखें उनकी बंद थी और निमाय वहां से आ गए और उन्होंने खाना चालू कर दिया. ठीक है? और जब खाना चालू किया, जब ब्राह्मण ने देखा, उन्होंने कहा, छी, तुमने सारा भोग कंटामिनेट कर दिया, तुमने सारा मेरा परिश्रम, मैं क्या मेरे भगवान को दूंगा और मैं खुद क्या खाऊंगा. तब बहुत नाराज हो गए और सची माता भी बहुत अपसेट हुई और जगन्नाथ मिश्रा भी बहुत अपसेट हो गए. तो जगन्नाथ मिश्रा ने कहा, टाई दिस बॉय इनसाइड अवे. ठीक है? फिर वापस सारा किचन साफ किया, वापस सारा क्लीनिंग प्रोसेस किया. ब्राह्मण तभी बहुत स्वच्छता को मेंटेन करते थे. सची माता ने फिर सारे इंग्रेडिएंट्स दिए और फिर वापस बनाया. फिर उन्होंने घंटी बजाई और बोला, पुष्पम फलम तोयम. फिर चैतन्य महाप्रभु फिर निमाय आ गए भागते हुए और उन्होंने फिर से वो भोजन खा लिया. तो फिर नाराज हो गए कि फिर तुमने मेरा सब कंटामिनेट कर दिया, मुझे वापस भोजन बनाना पड़ेगा, मैं नहीं बनाऊंगा अभी भोजन. फिर उसी ब्राह्मण के सपने में भगवान आते हैं और कहते हैं कि तुम्ही ने तो मुझे बुलाया था पत्रम पुष्पम फलम तोयम घंटी बजा के, और जब मैं आता हूँ तो तुम मुझे नाराज हो जाते हो मेरे से, मैं क्या करूं. So this is the same Lord who is trying to be aham bhakta paradhin. He is trying to be subordinate. Actually, we are subordinate, but he is showing he is subordinate when he is giving us everything. है ना? He is giving us. He is only the source of everything, but he is only being humble and saying that give me everything. Give me patram pushpam phalam toyam, and I will accept it. Hare Krishna. Thank you very much. So thank you, Hare Mata. Thank you everyone. Hare Krishna. If possible.